Welcome to Sunya IS and welcome to episode 6 of Conduct Letter, our 20 days prelim series. Today we will be discussing the strategy regarding current affairs specific to prelims as to कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है. So I have made a certain pointers that I wanted to discuss with you. They are kind of rules that I think at this point of time you should consider when you are picking up a new PDF or revising your old ones regarding current affairs. Okay, so the first rule I have written only one PDF, and I know this is such a cliche. All of us have been told keep the resources limited, keep the resources limited. Again and again toppers tells us, our seniors tells us, teachers tells us, mentors tells us, but still जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आने लगेगा दैट वन PDF जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही होगी, दैट वन वीडियो दैट वुड बी क्लेमिंग कि ये कर लो तो 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, दैट इज़ वेरी टेम्पटिंग. एंड इवन people who have had experience with this exam, who actually truly understand limited sources कितने important है, even they get tempted, including me, even in my later attempts. कभी कभी ऐसा लगता है टेलीग्राम पे लास्ट मोमेंट पे कोई PDF आ गया है सुंदर सा, उसमें ऐसे बार्स ग्राफ्स डायग्राम्स बने हुए हैं एंड करंट अफेयर्स का कंटेंट है उसमें, तो जो अभी तक पढ़ा था सब छोड़ के वो पढ़ लेते हैं. तो ये इशू बहुत कॉमन है, बट देन ये इशू बहुत प्रॉब्लमैटिक है. वाई इज इट प्रॉब्लमैटिक? Please understand that current affairs is unlimited. There is no end to it. So if you don't put an end to it, aggressively you don't limit it, it will become very problematic. आप actually कहीं पे stop लगा ही नहीं पाएंगे, and खुद वो stop लगेगा नहीं, because unlike Lakshmikant or Spectrum, this is not just one book. Current affairs is happening every day. So how do you put a limit to it? The goal should be one PDF. Now what one PDF, which PDF, which is the best one? The second question that keeps bothering us, कौन सा current affair है जो best है? I have even had aspirants asking me, मैम आपकी कोचिंग के करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उस वाली कोचिंग के करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. So I'll try address this very honestly and simply. If anybody is giving you a 5000 page का PDF एंड देन वहाँ से 10 क्वेश्चंस आ गए एंड देन दे क्लेम कि मेरी करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन आए थे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर आपने 5000 पेज पढ़े हैं और वहाँ से 10 क्वेश्चन आ गए तो दैट इज मियरली लक और जस्ट द बल्क ऑफ द बुक. ऐसे तो मैं आपको विकीपीडिया पढ़ने बोल दूंगी हर चीज़ की और बोलूंगी कि फिर यहाँ से 100 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ गए थे. That doesn't make any sense, right? You also have to, I understand that you would want to do quality, but at a certain point you also have to limit quantity. So if this question is bothering you ना कि कौन सा PDF best है, let me honestly tell you, या आप खुद सोच के देखिए, what is current affairs? मतलब current affairs is something that is happening in India and then across the world. सो नोबडी क्रिएट्स करंट अफेयर्स ना. ऐसा तो नहीं है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है जो कोई कोचिंग अच्छे तरीके से समझा देगा, कोई कोचिंग खराब तरीके से समझा देगा. इट इज जस्ट करंट अफेयर्स एंड ऑल द कोचिंग्स आर कंपाइलिंग इट एंड देन बेस्ड ऑन देयर विजडम एंड देयर एनालिसिस दे माइट प्रायोरिटाइज इट कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है. बट ओवरऑल करंट अफेयर्स तो सेम ही रहेंगे ना. लाइक इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग रिलेटेड टू अफ्रीका, कुछ कॉन्टिनेंट उसमें समथिंग इज हैपनिंग, देन एवरीबडी वुड नो द सेम अबाउट इट. ऐसा नहीं तो नहीं है कि किसी को ज़्यादा डिटेल्स पता होंगी. तो इफ दिस क्वेश्चन कीप्स बॉदरिंग यू अगेन एंड अगेन कि कौन सी PDF बेस्ट है, प्लीज टेल योर सेल्फ ऑल द PDFs आर ऑलमोस्ट फाइन. जिसका भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, जो आपको अवेलेबल है या जिस पे आपको ट्रस्ट है, टेक वन. But then just take only one. Even current affair classes, you don't need to do multiple classes for current affairs. Please understand that जब जब prelims नहीं निकलता है, every attempt by attempt, हमें ऐसा लगता है हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है. एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, बट उस एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. इफ लास्ट ईयर यू रेड वन PDF, अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट सॉल्व करंट अफेयर के क्वेश्चन उससे, तो इस साल यू विल स्टार्ट टेकिंग 3 PDFs. And that is not the correct approach. So please try to limit your sources. एक बार अभी टाइम है, फाइनली डिसाइड कर लीजिए आप क्या पढ़ेंगे, आप कौन सी क्लासेस देखेंगे, and then stick to it. Don't keep questioning yourself again and again, because trust me, beyond the point, every current of all the compilations that you're getting are made from the same source. Everybody has the same knowledge. ऐसा नहीं है that some institute will have too much of it, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पता होगा. So please limit your sources and please don't go behind these claims कि मेरे में से
25 क्वेश्चन आ गए थे, 75 क्वेश्चन आ गए थे, कुछ मतलब प्रपोर्शन भी तो होना चाहिए ना. 5000 पेजेस में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो देन दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड गो फॉर. प्लीज लिमिट योर सोर्सेज एंड आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक. आई एम नॉट टेलिंग कि यही करिए, जो ठीक लग रहा है करिए, बट प्लीज को ये करिए एंड देन बी कंटेंट विद इट. हर दिन न्यू पीडीएफ उठा के आप प्लीज उसे जमा मत करिए, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है. Now, after I have told you that you need to limit your resources and you need to do it aggressively, the second point would be avoiding the too many facts trap. When I analyzed कि current affairs के कितने questions आ रहे हैं, let's take last 5 साल में, if you would want to spot direct question कि उसका static से कुछ relation नहीं है, although ऐसे बहुत कम questions होते हैं. For example, कुछ report आ गई, कुछ UN body से कुछ आ गया, we consider them as core current facts that can vary from 10 to 12. You know, sometimes it will go to 15. But if you actually want to find out कि current से कितने questions आ रहे हैं, that can actually go up to 30 to 35 if you actually consider those questions that are linked to current. And this is where I would want to draw your attention. Please understand that suppose polity में they ask a static concept about deputy speaker. You might feel that why have they asked it suddenly? बट देन यू विल लेटर ऑन रियलाइज कि डेप्यूटी स्पीकर पे कुछ ऐसी न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट थी. सो वो कॉन्सेप्ट करंट का था, स्टैटिक से दे आस्क्ड. ओके, सो दिस वुड बी समथिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू दैट रादर देन studying static and current in isolation, you need to integrate it properly. You actually need to understand that even for art and culture, sometimes you will see अगर किसी scripture के बारे में पूछा है, सपोज चोला के बारे में पूछा गया, दैट माइट सीम टू अस कि वो बहुत कोर स्टैटिक है, बट देन इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट उसका भी ऐसा कुछ लिंकेज था, दैट मे बी कुछ एनिवर्सरी थी or maybe some scripture was rediscovered or something of that sort happened, new discovery happened. तो ये तो करंट और स्टैटिक दोनों का लिंकेज हो गया ना. क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल ही स्टैटिक है, बट नो, इवन उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कुछ ना कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट होता है. एंड फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन द थर्ड पॉइंट दैट प्लीज पूरा एक करंट अफेयर्स एक साथ बुक लेके अलग से पढ़ने मत बैठिए. रादर जब आप पॉलिटी का स्टैटिक पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़िए, सो दैट आपको पता चल जाए कि इस साल करंट में ये है. एंड फिर आप उसमें से पॉलिटी जब आप रिवाइज करेंगे फाइनल, वैसे तो आपको पॉलिटी एंड टू एंड पढ़नी है, बट लास्ट 1 वीक में जब आप रिवाइज करेंगे तो जो करंट में चल रहा है उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे. सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी. यू शुड नॉट ट्राई टू डाइजेस्ट होल करंट अफेयर्स एट वंस लाइक अ big meal. Rather you should divide it into small portions and link to static. जब आप साथ में पॉलिटी का करंट और ये पढ़ेंगे तब it would make a lot more sense to you. Now daily small part approach, I think I have already discussed this with you, that I personally feel that current affair cannot be digested at once. First you do day long class or whatever, one PDF you give the first read, that has to happen at once. But post that memorization has to happen in parts, and that is why you would have seen on day 2 or 3 when I was trying to discuss with you how to divide your daily slots. You should divide them into small parts, and one important slot daily should be current affairs. You know, you should be trying to do current affairs daily thoda rather than trying to do it all at once, so that you can memorize, because current affairs is a part जहाँ पे आपको थोड़ा memorization लगता है. Okay, and then how to check आपने current पढ़ाई की नहीं. If you would want, which I used to do, I used to take any test series जिसमें monthly current affairs, suppose जून मंथ का एक टेस्ट है, जुलाई का एक टेस्ट है, because I used to do monthly compilations, तो I used to revise जुलाई का and then give जुलाई का current affair का टेस्ट that can have 50 or 100 questions, that is current specific questions. Similarly, like we do sectionals for others, so that जैसे ही हमने जून का current affair revise किया, हमने वो देख लिया. एंड अगर आप ईयरली करने हैं देन दिस माइट, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, देन यू आर डायरेक्टली जंपिंग टू ईयरली कंपाइलेशन दिस टाइम, देन आई थिंक दिस टेस्ट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. देन दैट इज ओके, यू डू योर ईयरली कंपाइलेशन, एंड देन जो भी टेस्ट होते हैं FLTs उसमें एनीवेज इंटीग्रेटेड रहती हैं. देन यू कैन डायरेक्टली जंप टू द ईयरली कंपाइलेशन, एंड देन जो भी आप FLTs देंगे उसमें करंट के क्वेश्चंस होंगे. देन आई वुड एडवाइज प्लीज अवॉइड going specific month-wise test, because that may demotivate you further. Now I think I have spoken about almost all points I wanted to discuss, and now the most asked question. There would be 3 type of aspirants. एक जिन्होंने पूरे साल खुद से न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए होते हैं, those are the rare of the rarest aspirants. If you are one of those,
प्लीज स्टिक टू दैट. आपने अगर साल भर मेहनत करके खुद से कुछ कंपाइल किया है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आप उसे पढ़िए, रिवाइज करिए, थोड़ा बहुत उसमें किसी क्लास से ऐड करना है तो आप कर लीजिए. दैट इज कैटेगरी 1, बट दैट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. नाउ द रिमेनिंग 2 कैटेगरीज वेयर 60-40 एस्पिरेंट्स आई फॉल. दैट वुड बी, सेकेंड कैटेगरी वुड बी कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े हैं साल भर, बट दे हैव डन सम मंथली कंपाइलेशन. अगेन हियर a simple logic, please understand that yearly जो मैगजीन आती है, that is nothing but a compilation of yearly monthly magazines, बट उसमें से मेंस का पोर्शन हटा के दे कंबाइन इट टोटली प्रीलिम स्पेसिफिक. तो अगर आपने किसी भी कोचिंग की, आपने समाधान किया है या कहीं कुछ भी और किया है, प्लीज आपने जो मंथ का किया है सेम आप सोर्स रखें एंड उसे रिवाइज करें. बिकॉज इफ यू नाउ कंप्लीटली pick up completely something different, then that would become a whole new material for you. फिर वो पूरा नई बुक जैसा हो जाएगा. So अगर आपने मंथली किया है साल भर, तो अगर आपने उसे अच्छे से हाईलाइट किया, then तो you don't even need to pick up yearly. Then आप कोई क्लास देख लीजिए, या even if you don't need that, आप अपने ही जो मंथली वाले हैं उससे अच्छे से रिवाइज करिए. And now coming to the third category of aspirants, they tell me, मैम हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कोई मंथली मैगजीन फॉलो नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे करना है. Then the hard truth is that you have to go for yearly compilation. Now is not the time. आप पीछे जाके न्यूज़पेपर्स तो पढ़ नहीं सकते. आप मंथली कंपाइलेशंस भी अगर अभी कवर करने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा. Then you have to do the bare minimum. That would be yearly compilation. Along with that, you can do a day-long class. You can do samadhan or whatever you prefer. But now you have to jump to yearly compilation. The simple answer, yes. There is no way other way. Now yearly compilation में you will get a certain booklet, and again if you want to even do that properly, bare minimum, उसे लास्ट तक जमा करके मत रखिएगा. Start working on it piece by piece every day, थोड़ा थोड़ा. With this, I think I have talked about everything I wanted to. Just wanted to emphasize कि एक साथ मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए. प्लीज किसी एक ही जगह से करिए. एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर द क्लेम्स विच आर एग्जैजरेटेड. करंट अफेयर का क्वेश्चन मोस्टली या तो ऐसा आता है जो सबसे सॉल्व होता है हर सिंसियर एस्पिरेंट से, या इतना कुछ अब्सर्ड आता है, देन दैट क्वेश्चन डजंट मैटर. एंड आप वो 1-2 अब्सर्ड क्वेश्चन के लिए 10 पीडीएफ्स नहीं पढ़ सकते. प्लीज डोंट फॉल फॉर एनी फॉल्स लेटर. मैं भी आपको कुछ बोल रही हूँ कि नहीं यहीं से पढ़ने से आएगा, डोंट लिसन टू इट. यूज योर ओन ब्रेन. आपको प्रपोर्शन भी देखना पड़ेगा कि वो कितने पेज का मटेरियल है. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज, अब से आपको अगर कोई भी पीडीएफ उठाने का मन है, जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ. अगर आप एग्जाम खत्म होने के पहले उस पीडीएफ को 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हैं, पिक इट अप. अदरवाइज डोंट. 3 बार भी मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे कम प्लीज अंडरस्टैंड दैट पहली बार पढ़ने में तो सिर्फ वी बेयरली हार्डली अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग सेकेंड रीडिंग में डेवलप होती है, थर्ड में शायद कुछ कुछ याद होने लगता है. अगर आपको पता है आपने अभी 1000 पेज की पीडीएफ उठाई, अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप उसे 3-4 बार प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करेंगे, पिक इट अप. अदरवाइज रीडिंग जस्ट वंस और ट्वाइस एट दिस पॉइंट इज एज गुड एज नॉट रीडिंग एट ऑल. अगर आप कोई ऐसे पीडीएफ है जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है, आपको मेरे मना करने, सबके मना करने के बाद फिर भी वो पढ़ना है, जस्ट कन्फर्म दिस विथ योर ओन सेल्फ कि क्या मैं इसे एटलीस्ट एग्जाम के पहले 3 बार सिंसियरली पढ़ पाऊंगा. इफ द आंसर इज येस, यू कैन गो फॉर इट. इफ इट इज नो, इट इज बेटर टू स्किप इट. With this, I think I will end this video. I would be attaching the certain PDFs if you would want, and then which I talked about in this video, and proper current affair marathon classes. You can check them out if required. If not, then please do what you have been doing. I'm pretty sure what you would have planned would be great too. I will see you in the next video. Take care.